Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit MOA. In standard 10 SS, in the last session we started chapter number 1, right, that is the heritage of India. And in the last session guys, we understood the meaning of the heritage, what is the inheritance, right, what are the two main classifications of the heritage, right, as well as we had been through the different knowledge about our past, right, the certain past, that what is the location of India, right, what is the area of India, right, what is a rich and varied heritage in the past, who were the people who supported our heritage, our culture, right, to grow very well and to be very much popular around the world, right, who are the people who built up the proper culture or the cultural heritage of India. Those all things we understood in the last session. In today's session guys, we are going to understand the first classification of the heritage of India, and that is the natural. Right. We discussed last time that the heritage can be classified into two different categories. The first category is the natural heritage of India, and the second is going to be the cultural heritage of India. So in today's session, we are going to discuss about the natural heritage. So at first, what is the natural heritage? Right. So before reading out the session, before reading out the paragraph, let us make it clear by our own thinking. नेचुरल हेरिटेज यानी कि क्या होता है कि हमारे नेशन को जो पहले से नेचर से मिला हुआ है, यानी कि बेसिकली दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर टू आवर नेशन, राइट। नेचुरली हमें क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे नेचुरल लैंडफॉर्म्स है या फिर रिवर्स है, राइट, वाटर बॉडीज है, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, द जंगल्स, द ट्रीज, ये सारी चीज़ों को हम अगर गिन लेंगे जो स्पेशली हमें इंडिया में मिल रहा है, राइट, तो उसे हम नेचुरल हेरिटेज कहेंगे, राइट, जो नेचर की तरफ से हमें मिला है। तो let us understand the meaning what is written in the book. The result of close relationship between nature, environment and human life is a natural heritage. जो हमारा रिजल्ट है, क्लोज रिलेशन है, राइट, इसका क्लोज रिलेशन होगा तो वो होगा नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ, यानी कि हम इंसान, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है और नेचर, इन तीनों का जो क्लोज रिलेशन है, उन क्लोज रिलेशन की वजह से जो रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, नेचुरल हेरिटेज कहेंगे। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है हमारे देश का, वो बहुत ही अलग है, राइट, सबसे अलग है, और उसमें भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, राइट। इफ यू फाइंड सर्टेन कंट्रीज दैट यू विल फाइंड ओनली द डेजर्ट्स। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन इंडिया इज द नेशन जहाँ पे आपको हर प्रकार के लैंडफॉर्म मिलते हैं, हर प्रकार की वाटर बॉडी मिलती है, राइट। सो बेसिकली नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है, राइट, वो बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है और बहुत ही वेरिड, यानी कि इंटरनली उसमें डिफरेंसेस बहुत है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक, इसमें कैसे फीचर्स आते हैं, कौन कौन से फीचर इसमें आते हैं, राइट। सो द फीचर्स आर द माउंटेन्स यानी कि पर्वत, द फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, plants, creepers, flowers, leaves, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animal। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, जो हमारे पूरे नेचुरल हेरिटेज में आते हैं। इनमें ये सारे फीचर हैं, यानी कि आप अलग अलग माउंटेन रेंज देख लो, लैंडफॉर्म कैसे होते हैं, तो वैलीज होती हैं, राइट, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं और प्लेटोज भी होते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स है वो इंडिया में पाए जाते हैं। वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो लेक्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है या फिर सी और ओशन है, वो भी पाए जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट the jungles, so different types of trees, right, the different types of the creepers, right, the different flowers, right, leaves, insects, the animals, there are numerous things we can find in India, and there are very few countries in the world who are having this kind of mixture by the nature। तो ये जो natural heritage हमारा है, right, ये बहुत ही unique है। Say for example, there are only two countries in the world where mainly the lions are found. The first is Africa in the safari, and the second one is in India. In the whole Asia, there is only one country, India, right? In that too, the region where we belong to, the Saurashtra, right? It is basically the Gir region, and we can find the lands over here only, right? So ये एक बहुत ही यूनिक बात हो गई। वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल जो टाइगर्स है, राइट, द एलिफेंट्स है, देन द राइनोस, राइट, देयर आर न्यूमरस एनिमल्स व्हिच आर फाउंड ओवर हियर इन इंडिया, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, राइट।
तो ये सारी जो चीजें हैं, कुछ फ्लावर्स है, तो ये जो भी नेचर की तरफ से हमें जो कुछ भी मिला है उन सबको हम अपना नेचुरल हेरिटेज ही कहेंगे। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स है जो हमारे हेरिटेज में इंक्लूड होते हैं। इफ वी गो फर्दर, वी आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर। जैसे ही पहले सेशन में मैंने बोला था, वी ऑल आर द सोशल एनिमल एज वेल एज अभी मैं बोल रहा हूँ वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। हम सारे कुदरत के ही बच्चे हैं, राइट। वी आर each and every person of us is belonging to the nature, right? We are created by the nature. तो हम नेचर के बच्चे हैं। So it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. तो नेचर के हम बच्चे हैं, तो नेचर ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया है कि हमारी जो भी बेसिक नीड है वो सारी बेसिक नीड को हमारा नेचर हमारे लिए सेटिस्फाई करता है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि खुराक यानी कि खाना, फूड, द वाटर पीने के लिए पानी, देन फ्रेश एयर हमें शुद्ध हवा चाहिए, राइट। वी नीड द प्योर ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, टू लिव हैप्पीली, एंड dwelling to cater all our needs, and it is always working to cater all our needs. हमारी जो भी जरूरत है वो सारी जरूरत हमेशा ही नेचर हमें सेटिस्फाई करके देता है। We ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ। हमारा जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें हम नेचर को बहुत ही फेथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, राइट। हमारा जो एंशिएंट कल्चर था उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं तो हम ये कहते थे कि उसमें भगवान समाये होते हैं, यानी कि उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। विदाउट एनी पर्टिकुलर कोज हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये फेथ हमारा पहले से रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस में पहले से ये सारी बातें बैठी हुई है, राइट। सो दैट इज आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति है कि जिसको हमने हमेशा संभाल के रखा है, और उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा क्लोज रिलेशन। द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक कथा ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम यही देंगे, जब हम छोटे थे तो हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी बचपन में पंचतंत्र की और बुद्धिज्म की जातक कथाएं बहुत ही सुनाई गई है। उन सब में नेचर कहीं ना कहीं बसा हुआ रहता था, right? Our classical and folk music and several ragas are based on prahar, right? Prahar is basically the period of a day, right? The day is divided into certain prahars, right? तो एक जो particular प्रहर पीरियड होता है डे का, उसे हम प्रहर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे राग हैं, बहुत सारे हमारा कल्चरल म्यूजिक के बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जो प्रहर के हिसाब से गाए जाते हैं, उस हिसाब से उसको बजाए जाते हैं। सिमिलरली सेम वे आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर, राइट। हमारी जो बेसिक मेडिकेशन प्रोसेस है, हमारी एंशिएंट मेडिकेशन प्रोसेस है, दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, राइट, इन द वर्ल्ड, इन द होल ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पुराना जो हमारा आयुर्वेदा है उसे देख लो, उसके बाद यूनानी आया उसे देखो, या फिर नेचर क्योर जो अभी काफी प्रिवेलिंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब भी नेचर के बेस्ड ही है, यानी कि हम खाते भी हैं नेचर से, हमारा पानी भी नेचर से आता है, हमारे लिए ऑक्सीजन भी नेचर से आता है। द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग दैट इज आल्सो मेड आउट ऑफ द नेचर, राइट। या तो फिर कोई एनिमल का फर होगा या फिर कोई कॉटन होगा, राइट, एंड फ्रॉम दैट द क्लोथ्स आर मेड एंड वी वियर इट। So everything what we are using up to now, most of them is created by the nature, right? So nature has always catered all of our needs. हमारी जितनी भी नीड है वो सारी नीड नेचर ने हमें दी है, and it has always satisfied our needs. That's why हम इसीलिए हम कहते हैं कि why we are the children of the nature. So I can ask that question, right? So the first question of your homework is why we can say that we are the children of nature, या फिर explain the statement in few lines we are the children of nature। ये आपके होमवर्क का पहला क्वेश्चन आज रहेगा, राइट। सो बेसिकली ये मीनिंग है नेचुरल हेरिटेज, यानी कि नेचर की तरफ से जो चीज हमें मिली है हमारे देश को, राइट। हमारे देश का हम हेरिटेज देख रहे हैं, तो सबसे पहले नेचुरली कौन कौन सी चीज हमारे देश को नेचर की तरफ से मिली है। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारा जो रिलेशन है एनवायरमेंट और नेचर के साथ, उन सबका क्लोज बॉन्डिंग का जो रिजल्ट बनता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, राइट, कैसे हम उसका जतन करते हैं, कैसे हम उसको डेवलप करते हैं। तो ये जो सारी चीजें वही हो गया हमारा नेचुरल हेरिटेज। और उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, वी डील विद द नेचर विद द रिस्पेक्ट एंड द फेथ। ये भी हमने देखा अभी, राइट। हमारा आयुर्वेदा, हमारे मेडिसिन जितने भी है वो भी ज्यादातर नेचर से ही बिलोंग करते हैं, राइट। आवर बेसिक नीड्स दे आर आल्सो बीइंग सेटिस्फाइड बाय द नेचर,
राइट। सो नेचर की तरफ से जो अलग अलग हमें फीचर्स मिले हैं, यानी कि एनिमल्स जो है, जंगल्स जो है, बर्ड्स जो है, इंसेक्ट्स जो हैं, राइट, उसके बाद द डिफरेंट जंगल्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर नेशन। सो नेचुरल हेरिटेज में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उसमें से सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा एंड दैट इज लैंडस्केप्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट फीचर जो आता है वो है लैंडस्केप, राइट। लैंडस्केप यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया, द लैंड एरिया। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी जमीनें होती है जहाँ पे कुछ अलग अलग पेड़ पौधे उगे होते हैं, और अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो इट बिकम्स वेरी मच ब्यूटीफुल टू सी द सीन, राइट। तो ऐसे जो सारे ब्यूटीफुल सीनरियोस है, राइट, वो बेसिकली लैंड के ऊपर बनते हैं। सो व्हाट आर द लैंडस्केप्स, पहले हम उसको समझेंगे। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। लैंड के जो डिफरेंट शेप होते हैं, राइट, उसके हिसाब से कुछ ऐसे लैंडस्केप बनते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एरिया बनते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज अ लैंडस्केप। हिमालय का जो माउंटेन रेंज है वो पूरा एक लैंडस्केप है, और अगर आप एक बार उसको देखोगे तो आप एक बार तो देखते रह जाओगे, राइट। वो इतना ब्यूटीफुल लगता है दूर से कि अगर आप उसको एक बार देखो, you just get lost somewhere into the thoughts, right? It is the landscape like that. It has endowed Indians abundantly with useful vegetation and minerals. तो ये एक लैंडस्केप ऐसा है, ये एक ऐसा ये लैंड का एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन और बहुत ही यूजफुल वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो होता है, वहाँ से मिनरल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय, राइट। कुछ अलग जो बहुत ही रेयरली देखने को मिले वैसे बर्ड्स, वैसे एनिमल्स, राइट, और जो माउंटेन पीक्स है वो पूरे के पूरे स्नो से कवर्ड, ये जो पूरा व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। एंड द ब्रीमिंग रिवर्स, और जो रिवर्स जो वहां से फ्लो हो रही है, राइट, दे आर बेसिकली द गिफ्ट ऑफ हिमालय। वो हिमालय की तरफ से जैसे कि हमारे देश को कोई गिफ्ट मिला है, राइट, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफ टेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयास, राइट। तेराई के जो जंगल है और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, राइट, जैसे कि अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, राइट। फिर ऐसे कुछ समिट्स है, राइट, ऐसे कुछ माउंटेन टॉप्स है जैसे कि नंदा देवी, वो सब हिमालय में सिचुएटेड है। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, राइट। एंशिएंट टाइम से ही, पहले के समय से ही हिमालय को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं। सो बेसिकली कोई पर्टिकुलर लैंड, तो जो लैंड के डिफरेंट शेप्स और उसके डिफरेंट टाइप से, राइट, एक पूरा एक डिफरेंट ही व्यू बनाते हैं, उसे हम लैंडस्केप के नाम से जानते हैं, राइट। और ऐसा ही लैंडस्केप जो है हिमालय, और हिमालय के बारे में अभी हमने बात किया कि बहुत सारे पिलग्रिम प्लेसेस वहाँ पे है, राइट, वहाँ से ऐसे वेजिटेशंस मिलते हैं, राइट, जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। उसके साथ कुछ स्ट्रेंज एनिमल्स और बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालय एंड फ्लोइंग थ्रू आउट द नेशन, right, in many of the states, these all are the precious gift of the nature given to us, given to our nation India, right. So the second point comes over here, that is the rivers. We all know about that, right. We have one popular river over here, and that is Malan, nearby Moa. So the rivers have been providing natural ways since ancient times, right. वो हमें एक natural way देती है rivers, हमेशा ancient times से ही the rivers are very much useful to us. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and the Ravi, right. रवि और इंडस के जो रिवर बैंक है, राइट, वहाँ पे इंडियन कल्चर बहुत ही डेवलप हुआ है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एटसेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो सारी नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, राइट, फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, राइट, ये सारी जो नदियां हैं उन लोगों ने भारतीय लोगों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको बहुत ही इफेक्ट किया है, राइट। वी ऑल आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू ऑल दिस रिवर्स टू, और द पीपल हु आर लिविंग बाय, दे हैव गॉट ग्रेट डेवलपमेंट बाय दैट रिवर्स ओनली। रिवर्स आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज, राइट। पानी के रास्ते से अगर कहीं पे मूव करना है तो भी रिवर्स का यूज होता है, पीने के पानी के लिए भी रिवर्स से ही पानी मिलता है, राइट। डोमेस्टिक यूज यानी कि घर पे यूज करने के लिए भी हमें रिवर्स से ही पानी मिलता है। इरिगेशन यानी कि जब कोई किसान अगर खेती कर रहा है, राइट, सो उसके खेत के अंदर पानी के लिए भी इरिगेशन, उसकी सिंचाई व्यवस्था भी नदियों से ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट भी नदियों से होता है। उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो नर्मदा नदी का जो केनाल है,
राइट. सो नर्मदा के कैनाल पे आप मोस्टली सारे कैनाल्स के ऊपर सोलर पैनल देखोगे, राइट, बिकॉज दोस कैनाल्स आर यूजलेस. उसके ऊपर से कोई तो क्रॉस होने वाला नहीं, बिकॉज वो बहुत बड़ी कैनाल होती है. तो उसके ऊपर पूरा का पूरा सोलर पैनल लगा दिया एंड दैट इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. उसके साथ नदियों के जो स्ट्रीम होते हैं, तो स्ट्रीम के साथ टर्बाइन को जोड़ के वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट. सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग द रिवर्स आर बीइंग यूज्ड इन आवर लाइव्स. बिसाइड्स दिस, इसके साथ मैन वाज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले, यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, राइट. जैसे कि घर बनाना या फिर क्ले के यूटेंसिल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, राइट, या फिर अगर प्लास्टर करना, इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे प्रोफेशन के लिए इंसान हमेशा नदियों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है. बिसाइड दिस, सॉरी, रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस. इंसानों के जीवन को नदियों के पानी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशहाल बनाया है. लैंडस्केप सीन्स एट dawn and dusk are very fascinating on the river side of the river, right. अगर हम रिवर की साइड का जो कोई कुदरती दृश्य उसको देखते हैं, right, कोई लैंड है that is very much nearby the river, so that scene really looks great, right. रिवर का जो शोर होता है, उसका जो रिवर बैंक होता है, वहां से लेकर आप आगे उसकी ग्रीनरी तक देखो, बहुत सारी नदियां ऐसी है, राइट. इन आर प्लेस ओनली, जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, उस एरिया में भी बहुत सारी नदियों के ऐसे ऐसे पार्ट आते हैं जहाँ पे आप आते हो तो they are just eye catching ones, right. वो सारे लैंडस्केप्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं हमारे लिए. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense, right. तो जो भी आर्टिस्ट होते हैं उसके लिए भी ये कि बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बनता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी गाने हैं जिसमें नदियाँ, पर्वत, राइट, ये सारी चीज़ों का बहुत यूज होता है, राइट. सो द आर्टिस्ट जो है, राइट, चाहे वो पेंटर है या फिर सिंगर है या फिर कोई डांसर है, राइट, तो कोई भी है या फिर कोई कवि है, वो सारे लोग जो है वो भी इन नदियों से, उसके किनारों से, वहाँ के जो लैंडस्केप से बहुत ही इंस्पायर होते हैं और उसके लाइफ के कुछ एस्थेटिक सेंस जो होते हैं जो ये नदियाँ ही डेवलप करती है, राइट. सो दिस आर ऑल अबाउट द रिवर्स. और मेन जो रिवर्स है हमारे उसके भी नाम आ गए. सो यहाँ से आपका आएगा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, which are the most important rivers in India, right. इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, तो ये सारे नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. यू आर सपोज्ड टू राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर. सो इन द natural heritage, the third one is the vegetation, that means the trees and all the plants, right. People of India are environment lover since ancient time. एंशियंट टाइम से ही भारत के जितने भी लोग हैं वो सारे हमेशा पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, राइट. वी ऑल लव द एनवायरनमेंट वेरी वेल, राइट. कहीं पे अगर अच्छा सा सीन दिख गया, वी आर गोइंग टू स्टॉप एटलीस्ट फॉर अ सेकंड एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्लांस ओवर इट बिकॉज द व्यू इज अमेजिंग, राइट. सो दैट इज आवर बेसिक थिंकिंग प्रोसेस. तो हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो पहले से ही एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से ही वो सारे लोग हमेशा नेचर को लव करते हैं, राइट. एनवायरनमेंट को हमेशा हमने प्यार किया है. इट्स प्रूफ is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि जिसको आप बहुत ही पसंद करते हो, राइट. तो वो सारी जो चीजें हैं वही प्रूफ है कि हम लोग कितना एनवायरनमेंट को चाहते हैं. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. बहुत सारे humans, right, people who are the vegetarian, right, फिर animals which are the vegetarian, then the birds, right, ये बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, राइट, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, द बटरफ्लाइज, द मधुमक्खी, राइट, द बीज, हनी बीज. तो ये कई सारी ऐसी प्रजातियां, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है विच आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड, जो अपने फूड के लिए ट्रीज पे डिपेंड करते हैं. बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया, राइट. अगर हम बनियान ट्री की बात करें, राइट, या फिर पीपल की पेड़ की बात करें, राइट, या फिर हम तुलसी की बात करें, तो ये जो सारे ट्रीज है उसको हम इंडिया में उसकी हम पूजा करते हैं, वी वर्शिप देम, राइट. हम उसकी पूजा करते हैं, हम ये मानते हैं कि उसमें भगवान का वास रहता है, राइट. द cereals, pulses, oil seeds, plants, green fields, then prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. ancient time से ही ये सारी जो चीजें हैं, राइट, यानी कि सेरियल्स है, देन द पल्सिस है, राइट, ऑयल सीड प्लांट्स है,
देन ग्रीन फील्ड्स, बहुत बड़े ग्रीन फील्ड्स जो होते हैं यानी कि जिसे हम अभी खेत बोलते हैं, राइट. देन द प्रॉस्परस हब्स पैक्ड फॉरेस्ट, राइट, जो फॉरेस्ट में से प्रॉस्परस हब्स को लिया जाता है, फिर उसको हम पैक करते हैं, फिर हम उसे कहते हैं ये हमारे पैक्ड फॉरेस्ट है, यानी कि वी हैव गॉट द फॉरेस्ट विद अस, राइट. तो ऐसे सारे प्रॉस्परस हब्स है, औषधियाँ हैं. देन मेडिसिनल प्लांट्स, सारी औषधियाँ, इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत ही रीच किया है, हमारी लाइफ को बहुत ही एनरिच किया है, हमारी लाइफ को बहुत ही प्रॉस्परस बनाया है, हमें हेल्दी रखा है, राइट. तो ये सारी चीजें हमें एंशिएंट टाइम से मिलती आ रही है. फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के नाम भी है जो हमें बहुत ही यूजफुल हुए हैं, जैसे कि हरड़े, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डुसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा दैट मीन्स जैस्मिन, देन डमराव दैट मीन्स स्वीट basil, sunflowers, champa that is plumeria, jui that is polyanthus, tuberose, जस्मिन एक्सेट्रा. ये सारे जो फ्लावर्स है और उसके साथ जो भी मेडिसिन का भी मैंने नाम लिया, यानी कि हरड़े, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डुसी, राइट. दिस ऑल हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, राइट. ये सारी मेडिसिन का आज की तारीख में इस कोविड का जो हमारे साथ अभी जो माहौल चल रहा है उसमें भी अर्डुसी, तुलसी वगैरह बहुत सारी औषधि का उपयोग होता है, राइट. वी यूज दिस फ्लावर्स टू वर्शिप, वी यूज दिस फ्लावर्स फॉर द सेलिब्रेशंस. इन सारे फूलों का भी हम यूज करते हैं, किसके लिए? वर्शिप के लिए करते हैं, भगवान की पूजा के लिए करते हैं, भगवान को चढ़ावा देने के लिए करते हैं. उसके साथ बहुत सारे सेलिब्रेशंस में, राइट, घर के डेकोरेशंस में, राइट, सजावट में, बहुत सारी जगहों पे हम इन सारी चीज़ों का बहुत ही यूज करते हैं, राइट. Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. हमारी social और religious life जो है वो vegetation से बहुत ही influence हुई है. हमारे religious और social life को, right, ये जो सारे flowers है, ये जो सारे vegetations है, उससे बहुत influence किया है, right. So the next point come over here from the natural heritage is the wildlife. So India is a nature lover since ancient time. ये बात बार बार यहाँ पे आ रही है, और जो बात सच है कि हम लोग जो है we are the Indians, we are always been the nature lover from the ancient time, from the startup of the nation India. It is a country with animal lover culture, right. हमारा जो देश है वो animal lover culture रखता है, right. यहाँ पे we love the animals as well as we love the human, right. जितना ही प्यार हमें इंसानों से है उतना ही प्यार हमारे देश में, right, animals को भी किया जाता है, right. कुछ ऐसे एनिमल्स जो हम सबको देखने बहुत पसंद है, कुछ लोग तो पागलों की तरह उसको देखने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, right. And those are the tiger, lion, elephant, then rhino, foxes, bear, then deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं जो इंडिया में पाई जाती है और देखी भी जाती है, राइट. स्पेशली हमारे एरिया में लायन, फॉक्सेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, डियर्स देखने को मिलते हैं, राइट. फिर नीलगाय हमारे रास्तों पे बहुत ही निकलती है, राइट. कई बार हमारी सोसाइटी में से या फिर हमारे मेन रोड से एलिफेंट्स निकलते हैं. एलिफेंट के लिए डेडिकेटेड जंगल्स भी हैं इंडिया में, राइनो के लिए भी डेडिकेटेड जंगल है, राइट. इन आसाम, इन मध्य प्रदेश, राइट. टाइगर के बहुत सारे टाइगर सफारी भी है इंडिया में. तो ये सारी अलग अलग प्रजातियां हैं जो इंडिया में देखी जाती है, पाई जाती है, और हम ज्यादातर इसे देखना पसंद भी करते हैं. एशियन लैंड्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. जो मैंने अभी बात स्टार्ट में बोली थी वही कि एशियन लायन जो है, राइट, वो सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं. और रिलीजियस बिलीफ हैज गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस व्हीकल टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसे हमने एक स्टेटस सिंबल दिया है दैट दे आर द व्हीकल्स ऑफ आवर गॉड एंड द गॉडेसेस. हमारे कुछ देवता और कुछ देवियां ऐसी है कि जिसके वाहन के स्वरूप में ये एनिमल्स का उपयोग होता था, राइट. टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स एक्सेट्रा. तो ये सारी जो प्रजातियां हैं, जैसे कि टाइगर है या फिर लायन है या फिर पीकॉक है या फिर एलिगेटर है, ईगल है, या फिर चाहे हम माउस ही पकड़ ले, राइट. वी ऑल थिंक दैट दीज ऑल आर द एनिमल्स व्हिच हैड बीन या फिर which are being the vehicles for all the god and the goddesses, right, what we believe them. Our natural currency is highly valued. Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse, elephant and bull. हमारी नेशनल करेंसी है, उसकी भी वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है, और उसकी वैल्यू बढ़ने के लिए उसमें कुछ पिक्चर्स ये भी हैं जो हमारा 4 सिंहों वाला जो चित्र है, यानी कि द टॉप ऑफ द अशोक स्तंभ, राइट. तो उसके अंदर क्या है? देयर आर 4 लायंस, द हॉर्स, द एलिफेंट एंड द बुल. तो ये हमारे करेंसी नोट्स में भी पाए जाते हैं. Furthermore, to protect the wildlife reserves are created
and even laws for the protection of their life have been enacted. तो इसी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि गिर फॉरेस्ट में कुछ एरिया आज की तारीख में ऐसे हैं कि दे आर रिजर्व्ड, right, that nobody can go, they are not declared as a sanctuary. Say for example जेसर से लेकर अगर आप जंगल का पोर्शन देखें गिर का, right, so the normal human being cannot go there because that is the area which has been reserved for the development of the lion, right. लायन ऑर्गेनिज्म जो है, लायन जो है वो उसका डेवलपमेंट हो, लायंस की संख्या बढ़े, उसके लिए वो एरिया को रिजर्व किया जाए, नोबडी कैन विजिट दोस एरियाज, राइट. तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाएंगे, बहुत सारे लॉ है, देयर आर द लॉज रिगार्डिंग द डिफरेंट एनिमल्स एंड द नेचुरल, ऑल द नेचुरल थिंग्स व्हाट वी हैव, राइट. वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, या फिर रिवर्स को बचाने के लिए, या फिर वेजिटेशन को बचाने के लिए, या फिर लैंडस्केप को बचाने के लिए, इन सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रूल है. दोस रूल्स हैव बीन एनेक्टेड, those laws has been enacted and we have to follow each of them, right. So guys, this is in total the natural heritage of India, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन हो रहा था, जो हमारा आज का सेशन था, राइट. सो आज के सेशन में मैंने आपको दो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दोस क्वेश्चंस. एट फर्स्ट, हाउ यू कैन से दैट और एल्स एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, राइट. एंड the second question was which are the important rivers found in India, right. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के मुझे सेंड करना है. बहुत ही स्मॉल आंसर है, राइट. पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप 7 to 8 सेंटेंसेस में लिखेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर सिर्फ ये रिवर के नाम ही होंगे और कुछ होगा नहीं, राइट. सो डोंट फॉरगेट टू सेंड दैट होमवर्क एंड आई होप दैट यू कुड अंडरस्टैंड द सेशन वेरी वेल. सो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. So now till then it is time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, take care of yourself as well as your family.